everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So in this video, we will discuss the remaining phylums and the kingdom of your animal, that is your Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Okay, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए. ओके, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए बिकॉज इट्स ऑल फ्री, राइट. और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि श्वेता मैम आप लोगों को नोटिफाई की थी कि आप लोगों का जो माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी का एक मॉडल सेट है, मॉक टेस्ट आप बोल सकते हैं, दैट विल बी अपलोडेड अराउंड your 10 a.m. right, in our telegram group. So don't miss that chance. Okay, don't miss that test, because we have put our best knowledge and made some important questions for you, and we can't assure you that these questions will come, but yes, you will definitely gain more confidence. Your nervousness will gradually disappear. Okay, and I would like to say you will definitely do well. Okay, because we have provided all the important sets. Okay, from basic से लेकर आपका higher level तक. Okay, हम सब हर तरह के questions आपको provide किए हैं, right? तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो जो आप लोगों का टेस्ट सेट है वो आप अच्छे से करोगे, और मार्क्स तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा. इवनिंग में उसका आंसर भी अपलोड हो जाएगा डिस्कशन के तौर पर, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए. ओके, तो बिना और बात किए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट. तो चलते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. बिगेस्ट फाइलम विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ स्पीशीज इज पीसेस, इंसेक्ट, मॉलस्का या फिर आर्थ्रोपोडा. इंसेक्टा होगा, राइट. तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Exoskeleton of which of the following consists of a chitinous cuticle? Porifera, Annelida, Arthropoda या फिर Echinodermata. किसमें होता है chitinous cuticle exoskeleton में? आपका Arthropoda में. Okay, option C is the correct answer. Clear? Now come to question number 3. Which of the following features are common in silverfish, scorpion, dragonfly and prawn? Okay, इनमें common feature क्या है? Cephalothorax and tracheae, 3 pairs of legs and segmented body, chitinous cuticle and 2 pairs of antennae या फिर jointed appendages and chitinous exoskeleton. क्या है? Characteristic features of arthropoda हम देखेंगे, right? Silverfish, scorpion, dragonfly, prawn, क्या क्या आते हैं arthropoda में मैं नहीं बोलूँगी. ओके, क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन मैं आंसर जरूर बोलूँगी. The answer is what? They have jointed appendages and chitinous exoskeleton. Okay, option D is the correct answer. Clear. Next come to question number 4. Arachnida is characterized by, okay, cephalothorax, 3 pairs of legs, book slung, mandibulate, mouth parts. ये या फिर head, thorax, abdomen, 4 pairs of legs, book lungs, chelicerae and pedipalpi and compound eyes. Okay, तो अगर हम 4 की बात करें तो सेफालोथोरैक्स तो होता है कि नहीं. तो सेफालोथोरैक्स किस में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो ये नहीं होगा, है कि नहीं. ऑप्शन बी हट गया, राइट. फिर आएंगे आपका 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. ओके, तो लेग्स को अगर हम देखें, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग, राइट. तो क्या करेंगे, एक को हटा देंगे, राइट. तो 4 पेयर्स ऑफ लेग कहाँ पे है, आपका ऑप्शन डी में है. Okay, then pedipalpi, yes, and chelicera. Okay, that is their characteristic feature, and they have compound eyes or simple eyes. They have simple eyes, right? तो compound eyes है आपका ऑप्शन सी में, तो उसे हटा देंगे, है कि नहीं. तो ए बी सी हट गए, तो रह गया क्या आपका ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Arachnids possess 3 pairs of legs, 4 pairs of legs, 5 pairs of leg या 6 pairs of leg. कितने pairs होते हैं, आपका ऑप्शन बी, 4 pairs of leg. अभी मैं बोली, है कि नहीं. नेक्स्ट
The correct order of podomeres in the walking legs of scorpion is. Okay, very interesting question. Okay, sequence, correct order आपको बताना है podomeres के. Clear? तो पहले क्या आएगा आपका, ऑप्शन मत देखो. ओके, पहले क्या आएगा आपका, पहले आपका आता है कॉक्सा, राइट. फिर आएगा आपका क्या, ट्रोकेंटर, देन फीमर. क्लियर? देन आपका आएगा पैटेला, देन आपका टिबिया, देन प्रोटैर्सस, देन टैर्सस. ओके, तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्लास क्रुस्टासिया possesses following features. ओके, क्रुस्टासिया में क्या फीचर्स होंगे, तो सेफालोथोरैक्स होता है या नहीं होता है, होता है. ओके, तो सेफालोथोरैक्स किस में है आपका, ऑप्शन ए एंड डी में है. ओके, ऑप्शन ए को पढ़ के मैं सेफालोथोरैक्स बोली. क्लियर? नेक्स्ट, बाइरामस अपेंडेजेस. ओके, डू दे हैव बाइरामस अपेंडेजेस? यस दे हैव. तो ऑप्शन ए में दो तो हो गए. एंड गिल्स, यस दे हैव द गिल्स. क्लियर? तो हियर द आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए. क्लियर? All these three justify the class Crustacea. Okay. Now come to question number 8. Okay. In Palemon, statocyst is situated on the, कहाँ पे होता है statocyst? On the antennule. Okay. तो क्या होगा, ऑप्शन ए. Clear? Next question number 9. The image formed in the compound eyes of prawn during day is what? Dim, mosaic, distorted या फिर non-mosaic. किस तरह के इमेज फॉर्म होते हैं डे में इन द आई ऑफ द प्रॉन, क्या होगा, उसके कंपाउंड आइज होते हैं, जो कि दिया भी हुआ है. तो क्या होगा, ऑप्शन बी, मोजाइक इमेज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट ग्रुपिंग. ओके, सेंटीपेड, मिलीपेड, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड में आते हैं, आते तो है. नेक्स्ट, कटल फिश, सिल्वर फिश, सी अर्चिन नहीं. ओके, सिल्वर फिश नहीं आएगा सिलेंडरेट में. फिर आपका टीनिया सोलेम, देन आपका आया है राउंड वर्म, फ्लैट वर्म. ओके, नहीं. ओके, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा आपका ऑप्शन ए, राइट. पहले ए में ही हमें मिल गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. In which one of the following classes of arthropoda the body is divided, okay, into head, thorax and abdomen? Okay, insecta, crustacea, myriapoda या फिर arachnida and crustacea. क्या होगा, ऑप्शन ए, insecta. In insecta, what, the body is divided into head, thorax and abdomen. Clear? Next, 12. It lives underwater for up to 3 years as nymph before emerging as a flying insect. Okay, flying insect बनने से पहले वो underwater up to 3 years तक रहता है वो animal. Okay, organism. Clear? In the form of what? In the form of nymph. हम उसे nymph बोलते हैं. तो this fossil of this insect dating back about 300 million years have been found as what? Mayfly, stonefly, caddisfly या फिर scorpion fly. क्या होगा, ऑप्शन ए. ओके, दैट इज mayfly. Clear? Next, 13. A larval stage occurs in the life history of all members of the group frog, lizard and cockroach, ascaris, earthworm and frog, butterfly, frog and mosquito या फिर housefly, earthworm and mosquito. ओके, इन सब में क्या होनी चाहिए कि एक एटलीस्ट वन लार्वल स्टेज होनी चाहिए. ओके, क्लियर? तो किसके मेंबर में आते हैं आपका, बटरफ्लाई में आता है, फ्रॉग में आता है, मॉस्किटो में आता है. तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, राइट. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 14. द इनग्रोथ ऑफ एक्सोस्केलेटन इन हेड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, क्या, नोटम, एपोडेम्स, प्लूरा या फिर टेंटोरियम. क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं टेंटोरियम. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. Antenna of cockroach consist of one segment,
या फिर 5 सेगमेंट्स, या फिर 3, या फिर मेनी? क्या होगा कॉकरोच का एंटीना? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेगमेंट्स. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. Efferent salivary ducts in Periplaneta open into stomach, base of pharynx, base of hypopharynx या फिर base of esophagus. ओके, क्या होगा आपका base of hypopharynx. ओके, ऑप्शन C is the correct answer. Clear? Next, come to question number 17. Melanin pigment in cockroach is found in epicuticle, exocuticle, endocuticle या फिर all of this. क्या होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज exocuticle. Next, question number 18. The wax present on the body of cockroach is secreted by mucocytes, leukocytes, oonocytes या फिर granulocytes. The wax what is secreted by your oonocyte. Okay, option C is the correct answer. Next, question number 19. Hemolymph of cockroach contains. ओके, क्या होता है हीमोलिम्फ में? आपका हीमोसाइट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है. ओके, सो कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, 20. फंक्शन ऑफ स्टोमोडियल वाल्व इन द गट ऑफ कॉकरोच इज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम. ओके, कहाँ से फूड का एंट्री वो प्रिवेंट करता है? दिस स्टोमोडियल वाल्व इन द गट ऑफ कॉकरोच फ्रॉम द what? Your midgut into the gizzard. Okay, option D here is the correct answer. Next, question number 21. Number of spiracles in cockroach are 2 pairs on thorax and 8 pairs on abdomen. Okay, 3 pairs of thorax, 7 pairs of abdomen या फिर 3 pairs of on thorax, 9 pairs on abdomen या फिर 1 pair on thorax and 6 pairs on abdomen. तो कितना होता है आपका? थोरैक्स में होता है 2 पेयर्स मतलब 4 एंड एब्डोमेन होता है 16 मतलब 8 पेयर्स होगा, है कि नहीं? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22. हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पोरा एलेटा इन इंसेक्ट्स इज ग्रोथ हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर मोल्टिंग हार्मोन? क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, दैट इज जुवेनाइल हार्मोन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. फैलिक ऑर्गन इन कॉकरोच इज रिलेटेड टू. तो किसके साथ ये रिलेटेड है? विथ मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 24. How many times between hatching and its complete development the young cockroach undergoes ecdysis? Okay, तो कितना होता है? Not more than 7, not more than 8, not more than 9 या फिर not less than 10. क्या होता है? more than 10 होता है, होगा, है कि नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन डी, राइट, not less than 10. Clear? Next, come to question number 25. Mouth parts in housefly is क्या? Sponging type, सिफोनिंग टाइप, मैंडिबुलेट टाइप, टाइप होगा ये, फिर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप? क्या होगा आपका? स्पॉन्जिंग टाइप. क्लियर? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 26. जॉन्स्टन्स ऑर्गन इज एसोसिएटेड विथ. इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? व्हिच ऑर्गेनिज्म? पहले बोलो, हाउसफ्लाई, मॉस्किटो या कॉकरोच? क्या होगा 26 का? इट इज रिलेटेड टू मॉस्किटो. ओके, तो मॉस्किटो का कौन सा ऑर्गन? एंटीना. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. लार्वा ऑफ एनोफिलिस इज. ओके, सरफेस फीडर विथ लॉन्ग एंड कोनिकल रेस्पिरेटरी साइफोन, सरफेस फीडर विथ अंडरडेवलप्ड रेस्पिरेटरी साइफोन, बॉटम फीडर विथ अंडरडेवलप्ड रेस्पिरेटरी साइफोन या फिर बॉटम फीडर विथ लॉन्ग कोनिकल रेस्पिरेटरी साइफोन? ओके, तो साइफोन किस तरह का होता है? पहले ये देखो, एनोफिलिस मॉस्किटो के लार्वा में द साइफोन इज व्हाट? योर अंडरडेवलप्ड. ओके, अंडरडेवलप्ड रेस्पिरेटरी साइफोन होता है. क्लियर? फिर आएगा आपका किस तरह का फीडर है? वो होता है क्या? सरफेस फीडर या फिर बॉटम फीडर? व्हाट? इट इज योर बॉटम फीडर. बॉटम फीडर नहीं, सरफेस फीडर. ओके, 27 का
सरफेस फीडर एंड अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी साइफन, मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, राइट? Next, come to question number 28. In the life cycle of mosquito, comma shaped stage is क्या? कौन सा stage? Pupal, larval, imago या फिर none of this? क्या? Pupal stage. Okay. Next, question number 29. Which of the following insects takes maximum toll of human life? Rat fly, sand fly, mouse fly या फिर mosquito? क्या होगा? Mosquito. Okay. Option D. Next, question number 30. Pollen basket occurs in honey bee on. कहाँ पे होता है पोलन बास्केट हनी बी का? प्रोथोरेसिक लेग या फिर मेसोथोरेसिक लेग या फिर मेटाथोरेसिक लेग या फिर द यूनियन द पार्ट वेयर द थोरैक्स एंड एब्डोमेन हैज यूनाइटेड. ओके, यूनियन ऑफ थोरस एंड एब्डोमेन कहाँ पे होता है आपका? इन द मेटाथोरेसिक लेग. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Clear? Now come to question number 31. Which statement is correct with respect to honeybee? क्या होगा? Apis indica is the largest wild honeybee या फिर bee wax is a waste product of honeybee. waste product तो नहीं है, bee wax है कि नहीं? And Apis indica is the what? largest wild honeybee नहीं, Apis indica नहीं. ओके, तो क्या होगा? बताओ. Clear? Next, drone of honeybee is deployed in chromosome number. Okay, drone deployed? I have already discussed in the previous video. Okay, in some previous video. Okay. Next, communication in honeybee was discovered by Carl von Frisch. Yes, that is true. Okay, clear? Next, come to question number 32. Mulberry silk produced by insect is the product of salivary gland of adult, salivary gland of larva, cuticle of adult या फिर cuticle of larva. क्या होगा? It is the salivary gland of the larva. Okay. Next, question number 33. An insect without metamorphosis. Okay, किसमें metamorphosis नहीं होता है? Bedbug, crayfish, silverfish या फिर head louse. क्या होगा आपका? Silverfish. Okay, option C. Next, question number 34. Which one of the following pairs is correctly matched? Okay, Aedes mosquito. Okay, plague होगा? नहीं होगा. क्या होगा बताओ comment section में. Okay. Next, Anopheles malaria. ये तो सही है. फिर housefly yellow fever नहीं. Then body louse typhoid नहीं. Okay. तो आपका काम है ये बताना कि एडिस मॉस्किटो और फिर आपका हो गया हाउस फ्लाई एंड देन बॉडी लाउज. ओके, ये तीनों के वजह से क्या होगा? कौन सा डिजीज होता है? क्लियर? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. द नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच इज. कितना होता है? मेल कॉकरोच में आपका होता है 10, फीमेल में भी आपका होता है 10. ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट 36. इन कॉकरोच द फ्लो ऑफ हीमोलिम्फ इज. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो क्या होगा? पहले हार्ट से फिर जाएगा हेड हीमोसिल, फिर पेरिविसरल साइनस, फिर आपका पेरिकार्डियल साइनस, देन ऑस्टिया, देन अगेन हार्ट. Okay, so option A is the correct answer. Clear? Next, question number 37. In mollusca, the cell is secreted by mantle, foot, टेनिडियम या फिर आपका पेरिकार्डियम. क्या होगा आपका आंसर? The answer will be mantle. Okay, option A is the correct answer. The shell is secreted by the mantle. Okay. Now come to question number 38. Organ of Vogenus are. These are the excreted organs of whom? What? Unio. Okay. Option A is the correct answer. Clear? Next, question number 39. Glossidium and Veliger both are the larval forms of. Okay. Pilla, Neris, Asterius या फिर bivalves. What? आपका bivalves. Okay. Next, 40. Eye of the molluscan group that resembles vertebrate eyes. क्या? Pelecypoda
गैस्ट्रोपोडा, स्काफोपोडा या फिर सेफालोपोडा? क्या होगा आपका? सेफालोपोडा। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following is correct? ओके, आर्थ्रोपोडा, अरेक्निडा, ग्रासहोपर, मोलस्का, सेफालोपोडा, ऑक्टोपस। मतलब क्या है? आपका फाइलम है, उसके बाद क्लास, उसके बाद एक एग्जाम्पल है कि नहीं? देन एनालिडा, हिरोडिनिया, सिल्वरफिश, देन मोलस्का, बाइवाल्विया, पिला। क्या सही है आपका 41 का? ऑप्शन बी। ओके, मोलस्का, सेफालोपोडा, ऑक्टोपस। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 42, the adult animal in this phylum is radially symmetrical, but its larva exhibits bilateral symmetry. Okay, larval form में symmetry है bilateral, adult form में symmetry है radial. Okay, तो क्या होगा? कौन सा phylum? They belong to the phylum Echinodermata. Okay, option D is the correct answer. Next come to question number 43. Aristotle's lantern is used for. Okay, क्या है? क्या होगा? This is used for what? Your chewing. Okay, option B is the correct answer. तो Aristotle's lantern किनके characteristic feature हैं? Tell me in the comment section. Okay, next come to question number 44. Arms are absent in sea urchin, sea cucumber, both of these या फिर none of these? क्या होगा? दोनों में ही एब्सेंट है आपका, तो क्या होगा? बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट 45, द प्लूटस लार्वा ऑफ एकाइनोडर्माटा बिलोंग्स टू द क्लास। कौन से क्लास में बिलोंग करता है ये? दिस बिलोंग्स टू योर ऑफियोरोडिया। ओके, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46. Diagnostic character of the phylum Echinodermata is the presence of, okay, pedicellary, spiny skin, water vascular system या फिर all of the above. okay, सबके सब प्रेजेंट तो होते ही हैं, है कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका एकाइनोडर्माटा का, तो क्या होगा? ऑप्शन डी, all of the above. okay, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. लार्वा ऑफ बैलेनोग्लॉसस इज, क्या बोलते हैं हम? बैलेनोग्लॉसस के लार्वा को टॉर्नरिया लार्वा बोलते हैं, राइट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. व्हिच वन इज अ लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट? ओके, मैं बोली थी आपको वीडियो में कि जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं उनका नाम याद रखो। ओके, आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो 48 का आंसर क्या होगा? बैलेनोग्लॉसस, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। नेक्स्ट 49. In vertebrates, which one of the following structures is believed to have transformed into thyroid gland? मतलब पहले क्या था जो कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन होके थायराइड ग्लैंड हुआ है? ओके, कौन सा स्ट्रक्चर? पाइगोस्टाइल, यूरोस्टाइल, एनल स्टाइल या फिर एंडोस्टाइल? क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन डी। ओके, दैट इज द एंडोस्टाइल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following are anamniotes? Okay, reptilian, mammalia, apes, reptilian apes, amphibia, amphibian apes, mammalia या फिर chondrichthyes, osteichthyes and amphibia? ऑब्वियस है, आपका ऑप्शन डी होगा। ओके, chondrichthyes, osteichthyes and amphibia. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. adult is degenerated in, ओके, एडल्ट डिजेनरेट कर जाता है। हर्डमानिया, हैगफिश, पेट्रोमाइजोन या फिर एम्फियोक्सिस? क्या होगा आपका? हर्डमानिया। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके, और साइड में क्वेश्चन का नंबर देना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स, एनालिड्स, यूरोडिल्स या फिर एसिडियंस? क्या होगा? 52 का आंसर ऑप्शन डी, एसिडियंस। ओके, दे शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट 53. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ? ओके, थ्रू आउट इट्स लाइफ, फिश या फिर आपका बर्ड, स्नेक या एम्फियोक्सिस? क्या होगा आपका? एम्फियोक्सिस। ओके,
Option D is the correct answer. Clear? Now come to question number 54. Ancestors of cyclostomes are मिक्सिनॉइड्स, आर्थ्रोपोड्स, ऑस्ट्राकोडर्म्स या फिर यूरोकॉडेट्स. क्या होगा? 54 का आंसर आपका ऑप्शन सी. ओके, दैट इज ऑस्ट्राकोडर्म्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. लैम्प्रेज आर जॉड फिशेस, जॉलेस फिशेस, जॉलेस प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स या फिर फिशेस विथ अ स्फेरिकल माउथ. क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज जॉलेस प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स. ओके. Next, come to question number 56. Which of the following is the largest class of vertebrates in the number of species? Okay, अगर number of species की बात करें तो सबसे बड़ा vertebrate class कौन सा है? Pisces, apes, mammalia या फिर reptilia? क्या होगा? 56 का आंसर आपका Pisces. Okay, option A. Next, question number 57. Which fins are paired in fishes? ओके, कौन कौन सा फिन आपका होता है? आपका पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स. ओके, दीज टू आर पेयर्ड. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. Which of the following structures of a fish is homologous to the lung of a frog? Homology. ओके, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, राइट? तो क्या होगा? स्टोमक, बुक लंग्स, गिल पाउच या फिर स्विम ब्लैडर. 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. ओके, स्विम ब्लैडर. तो स्ट्रक्चर तो आपका सेम हो गया है कि नहीं? फंक्शन कैसे डिफर करता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 59. एयर ब्लैडर इन अ फिश डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट या फिर साउंड प्रोडक्शन. क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्सक्रीशन. क्लियर? नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 60. One of the following is absent in a placoid scale. Okay, placoid scale में इनमें से क्या absent है? Enamel, dentine, vitrodentine या फिर pulp cavity. क्या होता है? Enamel नहीं होता. Okay, option B, A is the incorrect one. Okay, this is absent in a placoid scale. Clear? Now, question number 61. Maltese cross is found in शार्क में दिखाई देता है, पर किस में दिखाई देता है? क्या होगा आपको? उसके वर्टिब्रा में. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिशेस हैव हेटेरोसर्कल टेल? ओके, डिप्नॉइड फिशेस, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस या फिर ऑल ऑफ दिस. क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस. ओके. Next, question number 63. Mermaid's purse refers to egg capsules of shark and skates, a colony of skates and rays, brood pouch of seahorse या फिर all of the above. क्या होगा? The mermaid's purse, it refers to the egg capsules of shark and skates. Okay, option A is the correct answer. Next, come to question number 64. Anadromous fishes move from river to sea, estuary to sea, sea to fresh water या फिर sea to estuary. Okay, an important and interesting question. Okay, they move from sea to the fresh water. Okay, option C is the correct answer. Next, 65. Bony fishes differ from shark in that shark और bony fishes में क्या difference है? Bony fishes have caudal fin, bony fishes have operculum, bony fishes have scales या फिर none of these. क्या होगा? 65. Bony fishes have operculum. Okay, where shark do not have that. Okay. Next, 66. Isinglass, a type of byproduct of fish industry, is principally used for. Okay, isinglass क्यों यूज होता है? 66. फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ विनेगर, वाइन्स एंड बियर. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगर पता नहीं है याद कर लो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67. एट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस द यूरोकॉडेट लार्वा एक्सपीरियंस रिडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम टू द विसरल गैंग्लियन, लॉस नोटोकॉर्ड, लॉस टेल या फिर ऑल ऑफ द एबव. क्या होता है? ऑल ऑफ द एबव. सब लॉस हो जाता है. ओके, देयर विल बी रिडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम टू द विसरल गैंग्लिया, देयर विल बी नोटोकॉर्ड लॉस ऑल्सो.
also the loss of tail happens. Okay. Next 68, poikilotherms are also known as, okay, एक्टोथर्म, आइसोथर्म, एंडोथर्म या फिर हेटेरोथर्म. क्या होगा? एक्टोथर्म. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाई दे आर नोन एज एक्टोथर्म? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 69. द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ऑस्टिक्थिस इज, कितने गिल होते हैं आपके? 4 पेयर्स. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 70, the characters that differentiates chordata from non-chordata is dorsal tubular nerve cord, alimentary canal, bilateral symmetry या फिर both A and B. क्या होगा आपका? dorsal tubular nerve cord. Okay, option A. Next question number 71. What will you look for to identify the sex of the following? Okay, male shark की determination के लिए claspers bone on pelvic fins. ओके, ये तो सही है कि नहीं? फीमेल एस्करिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, नो. मेल फ्रॉग, अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, नो. फीमेल कॉकरोच, एनल सर्काई, ओके, नो. तो बी सी डी क्या होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 72. व्हिच वंस आर वार्म ब्लडेड? एप्स, पीसेस, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस? ऑब्वियस आंसर है क्या होगा आपका? एप्स. ओके. नेक्स्ट 73. रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड व्हाट? नियोटेनी, है कि नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 74. अ हाइबरनेटिंग फ्रॉग रेस्पायर्स विथ, यू ऑल नो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन. ओके, तो जब फ्रॉग हाइबरनेशन में होता है तो किससे वो रेस्पिरेशन करता है? क्या होगा 74 का आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज स्किन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड इनटू पॉइजन ग्लैंड? क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड या फिर नन ऑफ दिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या होगा आपका? पैरोटिड ग्लैंड. क्लियर? नेक्स्ट 76. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मिडवाइफ स्टोर? किसे बोलते हैं हम बोलते हैं एलिड्स को. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स वाज मेसोजोइक, पैलियोजोइक, सिनोजोइक, प्रोटेरोजोइक. तो पिछले साल आपका ये एरा में से आया था. जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो आपका सिलेबस में है उससे क्वेश्चन आया था. ओके, तो इस साल भी आ सकता है. तो ये क्वेश्चन है, क्या था आपका रेप्टाइल्स का गोल्डन एज? मेसोजोइक. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. जैकबसन्स ऑर्गन इज रिलेटेड टू टेस्ट, साइट, टच या फिर स्मेल? क्या होगा? स्मेल. ओके, ऑप्शन डी. नेक्स्ट 79. क्लेडोइक एग्स आर फाउंड इन, ओके, ये क्या है? ये तो ऑप्शंस नहीं है. क्लेडोइक एग्स आर फाउंड इन टेस्ट, साइट, टच एंड स्मेल. तो देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ. ओके, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. ओके, तो देखो पहले कर देते हैं फिशेस, फिर आपका कर देते हैं एम्फीबियंस, फिर करते हैं रेप्टाइल्स. ओके, फिर नन. ओके, चेंज कर रही हूँ. ओके, ऑप्शंस आपका. तो क्लेडोइक एग्स, दीज आर फाउंड इन व्हाट? आपका रेप्टाइल्स. ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ध्यान रखना, ये मैं ऑप्शन चेंज की हूँ. ओके, दीज ऑप्शंस विच वर गिवन वर नॉट रिलेटेड. ओके. नेक्स्ट 80. विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज द लिविंग फॉसिल? ओके, इनमें से क्या एक लिविंग फॉसिल है? क्या है? स्फेनोडॉन. ओके, ऑप्शन सी. Next question number 81. Which one of the following is a matching pair of an animal and it's one of the characteristics? Okay, Heloderma poison gland. ये तो सही है, पहले से आंसर मिल गया हमें. नेक्स्ट Varanus prehensile tail, chameleon your binocular vision and house lizard 4 chambered heart. ओके, क्या होगा बताओ?
अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो पूछो. ओके. अनदर थिंग, इफ़ यू आर गेटिंग एनी डाउट, ओके, डायलेमा हो रहा है कि मैम ये आंसर होनी चाहिए लेकिन आप ये बोली हो, तो डू लेट मी नो. ओके, because we are shooting and then also editing, and during editing some mistakes happens. Okay, so do let us know. Okay, next come to question number 82. Which of the following is a herbivorous plant? Okay, herbivorous plant, it shouldn't be herbivorous plant. Okay, it should be herbivorous lizard. Clear? तो इसका आंसर क्या होगा? टाइयस, वैरानस, कैलोटिस या फिर इग्वाना? क्या होगा? 82 का आंसर आपका ऑप्शन डी. क्लियर? हर्बीवोरस प्लांट नहीं है, लिजर्ड होगा. ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 83. पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज अ मॉडिफाइड टीयर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या फिर सेबेशियस ग्लैंड? क्या होगा? ओके. Next come to question number 84. Antivenin injections used for snake bite are prepared at. Okay, कहाँ पे ये प्रिपेयर होते हैं? IVRI बरेली, NDRI कर्नल, IARI न्यू दिल्ली या फिर हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई? क्या होगा? ऑप्शन डी. ओके, हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई. क्लियर? Next question number 85. One of the following snakes, which one is viviparous? Russell's viper, great cobra या फिर अजगर? ओके, इनमें से viviparous कौन है? इनमें से viviparous है आपका ऑप्शन ए, दैट इज रसेल्स वाइपर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन कोबरा, अर्थवर्म, स्कॉर्पियन या फिर लोअर वर्टिब्रेट? क्या होगा? पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन कोबरा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. Syndactyly, prehensile tail and long protrusible tongue are the unique features of horsefish, chameleon, Archaeopteryx या फिर rhesus monkey? क्या होगा? ऑप्शन बी, chameleon. ओके. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 88. Archaeopteryx is the connecting link between, अगेन क्या होगा? रेप्टाइल्स, एप्स, एप्स मैमल्स, फिशेस एम्फीबियंस या फिर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स? ये होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज रेप्टाइल्स एंड एप्स. नेक्स्ट 89. न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन फ्रॉग, पिजन, व्हेल या फिर शार्क? क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज पिजन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड इन द, कहाँ पे सिक्रेट होता है? यूरोपाइजल ग्लैंड या फिर क्रॉप ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, क्रॉप ग्लैंड्स ऑफ मेल एंड फीमेल या फिर मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द पिजन? मैमरी ग्लैंड्स नहीं होगा, क्या होगा? क्रॉप ग्लैंड्स. ओके, ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. Which one of the following group of animals maintain high and constant body temperature such as mammals? ओके, तो कौन मेंटेन करते हैं? बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस? क्या होगा आपका? ऑप्शन ए. ओके, बर्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. ड्यूरिंग माइग्रेशन बर्ड्स डिटरमाइन कंपास डायरेक्शन यूजिंग लैंड मार्किंग एंड वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड लैंड मार्किंग्स, वाटर बॉडीज एंड माउंटेन्स या फिर सेलेस्टियल बॉडीज? क्या होगा? 92 का आंसर सेलेस्टियल बॉडीज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ अ मैमल इज फ्रॉम द पर्मियन, ट्राइजेसिक, जुरासिक या फिर क्रिटेशियस? ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ अ मैमल, ओके, दैट इज फ्रॉम योर ट्राइजेसिक एरा. ओके. नेक्स्ट 94. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन, विविपैरिटी, मैमरी ग्लैंड, हेटेरोडोंट टीथ या फिर हेयर ऑल ओवर द बॉडी? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैमरी ग्लैंड. ओके, बिना कोई एक्सेप्शन के सबके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक मैमल्स के मैमरी ग्लैंड. ओके. नेक्स्ट 95. एकिडना इज फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, मलाय या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्या होगा? 95 का आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट
A mammal which lays eggs instead of giving birth to offsprings is rabbit, whale, macropus या फिर duck-billed platypus. क्या होगा 96 का आंसर ऑप्शन डी, दैट इज duck-billed platypus. ओके, नेक्स्ट 97. Only poisonous mammal is guinea pig, snake, ornithorhynchus या फिर echidna. क्या होगा? Only poisonous mammal is your ornithorhynchus. Okay, 97 का आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द मार्सुपियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवोरा, रोडेंशिया या फिर मेटाथेरिया या फिर काइरोप्टेरा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? मेटाथेरिया. क्लियर. नेक्स्ट 99. Which of the following is a microphagous feeder? Micro, okay. Dog, cow, elephant या फिर whalebone whale. It will be your whalebone whale. Okay. Next, last question of this set. Which of the following exhibit discontinuous distribution? Dipnoi and Ratite and Osteichthyes, Metatheria and Carinate या फिर Prototheria and Urodela. क्या होगा आपका ऑप्शन ए. Clear, Dipnoi and Ratite. Okay. So this completes your 100 MCQs from your animal diversity. Animal diversity जो भी important question हमें लगा कि आप लोगों को अच्छा रहेगा देने से, वो हम दे चुके for 2021. तो आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो. Okay. And whatever we have provided, we really hope some questions must have come from those topics, okay, those concepts. So all the best to you all and keep watching your videos. Take care of yourselves and do your best in the exam. Thank you.